Okay, so we will begin with module 3 today. मॉड्यूल 3 में हम पहला चैप्टर जो देखेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर एंड hence it becomes important for us to do this chapter very well. So to start, before we start rotational motion, we need to know some basics, and one of that basics is what is a rigid body. तो what is a rigid body, क्योंकि rigid body से start होगा. What do you mean by rigid body? Body whose dimensions does not change with the application of any system. Okay, so when you apply any amount of force, the dimensions of the body do not change, which means molecule or particle distance between, I mean interparticle distance do not change. कितना भी force apply कर दिया, क्योंकि ये rigid body is supposed to be, because ये solid होगा. You already know that in solids you have definite arrangement of atoms or molecules, and if you apply any amount of force, the distance do not change. Anyways, rigid body बताने का मतलब सिर्फ ये था that whenever we will bring in rotation, the atoms or particles, they will not vibrate, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट होने लगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों को वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होगी. दिस इज व्हाई यू नीड टू नो दैट while studying rotational motion we strictly consider rigid bodies. Then you must know center of mass, and we need to know a lot of formulas related to center of mass. So we should know what is center of mass and formulas related to center of mass. What is center of mass, by the way? And why do we need this concept of center of mass? क्या जरूरत है center of mass define करने की? Center of mass क्या होता है? अगर मूविंग बॉडी को एक पॉइंट मास मूविंग बॉडी को अगर एक पॉइंट मास ट्रीट किया तो दैट इज करेक्ट, बट व्हाई? यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखो, हमने इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीखा था. सो इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दोज लॉज ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट पार्टिकल्स, है ना? फिर अगर मैंने एक बॉल को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा दिया तो क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि इस केस में कौन से पार्टिकल का एक्सेलरेशन, कौन से पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है. इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है क्या, कि इस पे लग रहा है, कि इस पे है, और कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या करते हो, एक्सेलरेशन फाइंड करते हो. So Newton's laws of motion are strictly valid for particles, but this is not a particle, this is an extended body. So the question is, when you apply force on a body, on which point the force is acting, of which point the acceleration we are talking about. तो हम लोगों को इसके लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इमेजिन करना पड़ता है या फिर डिफाइन करना पड़ता है, नॉट इमेजिन, डिफाइन करना पड़ता है. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ सिंगल पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. मतलब अगर मैं एक पॉइंट पार्टिकल, टोटल इसका मास मान लेता हूँ 10 किलोग्राम है, और यहाँ पे पार्टिकल है, इसका मास भी 10 किलोग्राम है. इस पे अगर मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जो स्पीयर है उसका एक ही पॉइंट ऐसा होगा which will behave exactly same as that point particle. That point is called as center of mass. So there is only one point in a body, extended body, which will behave exactly same as that of a point particle, and that is called as center of mass, or you can say center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to apply Newton's laws of motion. Good. Then
what is the formula for center of mass? What is, how do you find out position vector of center of mass? m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus mn rn bar upon m1 plus m2 plus mn. सो पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा r1 बार, दूसरे का होगा r2 बार, तीसरे का होगा r3 बार, so on so forth. So r bar here is position vector of center of mass. In short, you can write down r bar as summation over mi ri bar upon summation over total mass, where I runs from 1 to n. Correct? Good. This is position vector of center of mass for a body having discrete mass configuration. What is discrete mass configuration? Different, different something. Yes, correct. Different क्या? For example, if I have मान लेते एक प्लेट है, इसका प्लेट का खुद का मास नहीं है, मैंने यहाँ पे एक मास रखा, यहाँ पे एक मास रखा, यहाँ पे एक मास रखा. So when the masses are at different points, then the distribution is said to be discrete. Step बोलते हो उसको, right? अगर मेरे पास एक दूसरा प्लेट है जिसमें हर जगह पे मास है, उसको बोलते हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो हमने लिखा समेशन साइन कब लिखा जाता है? व्हेन यू हैव डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन. यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन r bar dm by total mass या फिर summation over dm if the mass is distributed continuously. उस केस में क्या करते हो? देखो पहले केस में डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन केस में क्या करते हो? आप बोलते हो यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे एक मास था, सबका सम कर लेंगे, MIRI बार निकाल लेंगे, राइट? जब मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हम लोग मास एलिमेंट dm लेते हैं, उसका डिस्टेंस देखते हैं ओरिजिन से. तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा समेशन r बार. आर बार क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट dm. सिंपल है, इजी इजी. डिस्क्रीट के लिए सिर्फ समेशन. क्यों? क्योंकि काउंट कर सकते हैं हम लोग. हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो 10 पार्टिकल से बना है, तो कर सकते हैं ना m1 r1 plus m2 r2 m2 अप टू m10 r10. पर अभी मैंने बोला कि ये जो मेरे पास डेस्क है, दिस इज द डेस्क, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. अभी तो मास तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दैट केस आई हैव टू डू इंटीग्रेशंस. सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. देन इफ आई वांट टू फाइंड आउट सेपरेटली, पहले तो मैं सेपरेट ही लिख देता हूं. पहले हम लोग डिस्क्रीट की बात ही कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे इसको. इफ आई वांट टू फाइंड आउट x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मुझे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? अरे फॉर्मूला है सामने आपके पास, समेशन MIRI बार. अभी ये r बार मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब तीनों कंपोनेंट्स x y z. मैं सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? mi xi समेशन, क्योंकि m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon summation of mi. Simple. Similarly, you can find out y coordinate of center of mass, that is summation mi yi. Remember, पोजीशन वेक्टर निकालते वक्त बार होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते वक्त यू डोंट राइट इट इन वेक्टर फॉर्म. ओके, इट इज नेवर रिटन इन वेक्टर फॉर्म. सो समेशन mi yi upon summation mi, and z component is summation
mi zi upon summation mi, right? This is how you find x, y and z coordinates of center of mass. Similarly, अगर आपके पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही आएगा, एक्स सी एम विल बी जस्ट इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, एंड वाई coordinate of center of mass will be summation y dm upon integration dm and z coordinate will be, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट टेक इट लाइटली कि ये क्या चल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, करेक्ट? ये याद रहेगा पक्का? Okay, then if you can remember this, we go to next step now. Next step is, अब जब बॉडी मूव हो रहा है, let's say I have a sphere which is moving, तो अभी बॉडी मूव हो रहा है तो बॉडी का हर एक पार्टिकल मूव होगा, पहला भी मूव होगा, दूसरा भी मूव होगा, तीसरा भी होगा, n particles will move. So I would want to know what is, और center of mass भी मूव हो रहा है मतलब, so I would like to know what is the velocity of center of mass. What is VCM bar, let us say. पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला था आपने, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार, तो यहाँ पे भी वही m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, जितने पार्टिकल से बॉडी बना होगा सबका मास इंटू वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट समेशन mi vi bar upon summation mi, right? Simple. So can you tell me what will be acceleration of center of mass? Summation mi ai bar upon summation mi. Similarly, आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आएगा ये? Yes, m1 vx1 plus m2 vx2 and so on so forth. So this is important for you to know. It's really important, and yeah. Okay. Easy. I will not go into further details. Just a minute. I need a pause. Right. Then let's discuss few bodies, and we would like to know where is the center of mass of these bodies. So center of mass of some useful bodies, useful for our purpose. Where is the center of mass of a sphere? एक बॉल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये सॉलिड बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, कहाँ होगा? सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे. क्यों? बिकॉज दैट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेंटर से मैं किसी भी डायरेक्शन में देख रहा हूं तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली. हॉलो स्फीयर का कहाँ होगा? फोकल प्लास्टिक बॉल सेंटर पे ही होगा. इवन दो देयर इज नो मास एट द सेंटर, बट सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंटर. गुड. स्क्वायर का कहाँ होगा? सॉलिड स्क्वायर का. क्यूब मतलब, क्यूब मान लो, सेंटर डिफाइन कैसे करते हो क्यूब का? द पॉइंट एट विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट. गुड. देन let's say I have a system of 2 point masses. 2 point masses. Where will be its center of mass?
दैट इज द थिंग। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अगर दोनों का मास सेम हुआ तो यू आर राइट। बट लेट अस से इफ आई हैव m1, वो तो फिर हमारा यहाँ पे कवर ही हो गया ना, m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 plus डिस्टेंस। अगर मेरे पास 2 पॉइंट मासेस है और m1 ग्रेटर देन m2 है, तो वेयर विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास? नियर m1, near m1, given by the same formula that we have used, m1 r1 plus m2 r2, वो हम लोग करते बैठेंगे। Why it is important? Where will be the center of mass of Earth and Moon system? Not on Earth, near to Earth, exactly. Right. Then, if I give you a rectangular plate, let's say we have a rectangular plate, right? Rectangular plate में let's say ऐसा हमारे पास प्लेट है, एक साइड है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ मतलब विड्थ B है, and let me draw diagonals here because we already know in such cases center of mass is at the point of intersection of the two diagonals, correct? Okay, ठीक है, that is correct. But how do you find center of mass here? You are right, at the point of intersection of diagonals, but I want to know what is x coordinate and y coordinate of center of mass. ऑनलाइन वाले भी आंसर दो। Where will be x coordinate and y coordinate of center of mass? स्कूल ज्योमेट्री है ये। Exactly, b by 2 and l by 2, because the point of intersection of a diagonal is exactly at half the distance in both x and y axis, b by 2 पे और l by 2 पे। Okay, so you should know this. Then okay, I'll just take one case, बाद में हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स में आएगा तब देख लेंगे बाकी के। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यू नीड टू नो। नहीं, बीच में मतलब बीच में कैसे डिफाइन करते हो? अगर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर सामने वाली साइड की लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस। तो जहाँ पर तीनों पॉइंट जो है, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, that will be the center of mass in this case. This point has got a name, centroid. तो in this case centroid पे होता है, और centroid पे होता है तो कैसे फॉर्मूला क्या लिखोगे? what is x coordinate, what is y coordinate? What are x and y coordinates? ये y है आपका, इसको 0 मान लेता हूं, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 मान लेता हूं ना मैं। सेंट्रॉइड, ऊपर का जो वर्टेक्स है वहां से जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो ओरिजिन है, मतलब मैंने यहाँ पे ओरिजिन सेट किया है बेसिकली। ये ऐसा एक्सिस सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। व्हाट अबाउट y? y centroid is at a distance of 1/3 of the height of the triangle, तो h/3 ये पता होना चाहिए, राइट? तो we'll now go
little bit into basics of rotational motion. अभी रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं किया, हम करेंगे अब, ठीक है। तो यू रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम सर्कुलर मोशन, दिस इज द assumption to start with rotational motion. Do you remember what was angular displacement? How do you define angular displacement? अगर आप लोगों को सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स पता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। What was angular displacement? What is displacement? Linear displacement? Change in position. Change in position या फिर distance traveled. Yes, distance traveled in a given direction. Angular displacement. Theta is angular displacement. Arc length s is equal to r theta. बराबर, तो theta is equal to h by r. But I want to know vector form of this. S bar equal to theta bar cross r bar. Because I am interested in knowing, देखो सर्कुलर मोशन भी रोटेशनल मोशन है बट फॉर अ सिंगल पार्टिकल. So in any case we would like to know sometimes, not always, what is the direction of angular displacement. What was the direction of angular displacement here? Along the axis, right? कैसे निकाला ये ऊपर का इक्वेशन, ये r बार है आपके पास. सपोज इनिशियली a पे था पार्टिकल, कुछ टाइम के बाद वो b पे गया, ये r बार है, ये s बार है. तो s बार is like this over here, and remember s bar, remember this is r bar, बराबर. थीटा, I'll take another pen and show you. अगर थीटा ऐसा होगा, थीटा आर, तो थीटा बार क्रॉस आर बार ही एस बार हो सकता है अकॉर्डिंग टू विच रूल? स्क्रू रूल. तो हमेशा याद रखना थीटा बार क्रॉस एस बार विल बी, थीटा बार क्रॉस आर बार विल बी इक्वल टू एस बार. ये एस बार है, दिस इज एस बार, दिस इज आर बार, दिस इज थीटा बार. तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यू कैन हैव थीटा बार क्रॉस आर बार एस एस बार. तो ये याद रखना, ठीक है. एनीवेज, इंपॉर्टेंट वाज टू नो इफ यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम सर्कुलर मोशन. अभी हम स्टार्ट करेंगे इन रियल टर्म्स रोटेशनल मोशन. हमको रोटेशनल मोशन से पहले रिजिड बॉडी क्या है ये पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने रिजिड बॉडी पहले लिया, क्योंकि जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो ही हम रोटेशनल मोशन की बात कर सकते हैं. Because we have to define what is rigid body, hence we have to define what is center of mass also. Good. Then first thing is moment of inertia. What do you understand by moment of inertia of a body? What was law of inertia? Law of inertia, Newton's first law of motion. To a body at rest. To a particle at rest Or at uniform motion, the particle remains in the same state. Right. जब तक आप एक पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक वो पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, अगर पहले से रेस्ट में था तो, या अगर वो मूव हो रहा था तो वो मूव होता रहेगा उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में. राइट. व्हाट वाज स्टॉपिंग इट टू चेंज इट्स स्टेट? व्हिच वाज द फिजिकल क्वांटिटी दैट स्टॉप्स अ पार्टिकल टू चेंज इट्स स्टेट? इट्स ओन मास. तो मास था
इनर्शिया लीनियर मोशन में। अब अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी है विच इज एनालॉगस टू, सिमिलर टू बट नॉट सेम टू इनर्शिया, that will stop a body to change its state of rotational motion, right? That is called as moment of inertia and denoted by I. The formula for I is क्योंकि हमको फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए होगा इसमें, एम आर स्क्वायर समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेसिक्स नहीं है याद ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग एक रिजिड बॉडी लेते हैं ऑफ एनी शेप, फिर हम लोग एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सेट कर देते हैं एंड वी से दैट द बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ठीक है, अभी जो भी आएगा वी विल डिराइव इट, नॉट डिराइव कंप्लीटली, जस्ट रफली rotating. When you say this body is rotating, to derive equation for I, you say that the body is rotating with uniform angular velocity, मतलब there is no angular acceleration, correct? Good. Then you say this particle is made up of n particles, you know, n particles, and each particle is at a distance of r1, r2, r3, rn respectively from the axis of rotation, correct? Good. Then you say that अब जब बॉडी रोटेट होगा मतलब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ डिफरेंट रेडाई। देखो इसलिए मैंने बोला था कि ओमेगा कांस्टेंट है, बिकॉज यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट इवन दो पूरा का पूरा बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा है, but each particle on the body is at a different distance from axis of rotation, मतलब r1 डिफरेंट है, r डिफरेंट है, मतलब हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। आया ध्यान में? और यहाँ पे ये v इज लीनियर वेलोसिटी। व्हाई लीनियर वेलोसिटी? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया whenever the body is rotating, each particle on the body is performing circular motion. each particle, मैं एक ही पार्टिकल का सर्कल दिखा रहा हूं, and you already know that when you talk about circular motion, linear velocity is pointing along the tangent. ये आ गया आपका linear velocity का डायरेक्शन, this one over here, tangent. याद है circular motion? Good. So that's why each particle has different velocity and मुझे निकालना है what is total kinetic energy of rotation, मतलब बॉडी रोटेट हो रहा है उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, लेकिन बॉडी किससे बना है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल प्लस थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। So total kinetic energy Ke of rotation will be equal to kinetic energy of first particle plus second up to nth. What is kinetic energy? Half m1 v1 square plus half m2 v2 square half mn vn square, correct? This is equal to half m. What is v1? r1 omega square plus half m2 r2 omega square and so on, half mn rn omega square. You can take out half and omega square constant, m1 r1 square plus
m2r2 square प्लस mn square, राइट। तो ये जो एक क्वांटिटी आता है आपके पास, दैट इज बेसिकली हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन mi स्क्वायर, इसको मैं टेम्पररीली आई बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन सा मोशन था? रोटेशनल मोशन था। अगर मेरे पास एक बॉडी होता जिसका मास m है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर, हाफ हाफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ जो मास है उसको एनालॉगस यहाँ पे आई है। लीनियर मोशन में मास इज इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट जब भी रोटेशन की बात आए तो ये आगे वर्ड यूज कर देते हो मोमेंट। तो यू हैव kinetic energy of rotation as half I omega square and moment of inertia I s summation mi ri square। अगर डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन है तो डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन, जो लेट आए उनके लिए डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? यहाँ मास है, फिर कुछ नहीं है, फिर यहाँ मास है, फिर यहाँ मास है। तो देर आर पॉइंट मासेस एट डिफरेंट प्लेसेस। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously, okay। so for continuous mass distribution r square dm is moment of inertia, correct, okay। तो इतना अगर आपको पता है तो I can go ahead because it's going to get tough from here। actually it is easy, it's not really tough but still। so what we need to do is, first of all, I would like to compare linear motion and rotational motion in terms of few parameters, and that is, ये important है। So when you talk about linear motion, यहाँ पे linear motion को अभी translatory motion नाम देते हैं हम लोग। Translation, why translation? क्योंकि लीनियर मोशन जब बात करते थे तो एक पार्टिकल की बात होती थी, जब ट्रांसलेशन की बात होती है तो पूरा एक हेवी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अदर पॉइंट इन स्पेस। सो आई वुड लाइक टू कंपेयर ट्रांसलेशन मोशन, जिसको तुम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, एंड रोटेशनल मोशन, राइट। फर्स्ट, यहाँ जो मास था उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, गुड। यहाँ जो मोमेंटम था उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। m क्या था? m i, और v क्या था? ओमेगा, राइट। व्हाट वाज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वाज p स्क्वायर बाय 2m, यस। तो p स्क्वायर इज 2m into exactly under root, very good, अंडर रूट ऑफ 2me। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 i, e की जगह पे क्या आएगा? e। एनर्जी तो एनर्जी है, करेक्ट। देन फोर्स, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब F इक्वल टू ma। यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं उसको। सो व्हाट विल बी टॉर्क? I अल्फा, वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आप लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। यहाँ पे आप लिखोगे पी स्क्वायर की जगह पे, पी की जगह पे क्या है? एल, एल स्क्वायर बाई 2i। हु से दिस इज डिफिकल्ट? फॉर्मूला याद नहीं रहता, अरे कंपेयर करो, लीनियर याद है ना? हाँ, तो ये होगा अपने आप। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल हियर, ओके। बिफोर we go and talk about moment of inertia of different bodies,
उससे पहले ही मुझे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों पता होंगे, देन योर लाइफ बिकम्स सिंपल. What do you mean by parallel axis theorem? What is parallel axis theorem? Okay. Let's say मेरे पास ये एक रिंग है. इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे. तो ये सेंटर ऑफ मास है. अब मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं. That axis of rotation passes through center of mass perpendicular to the plane of ring. मतलब ये ऐसा रिंग, ये ऐसी एक्सिस. करेक्ट. तो moment of inertia about center of mass ICM is either known or it is easy to calculate. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. क्योंकि सेंटर से नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं पूरे रिंग का निकालना है अगर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं. फिर हर एक पीस तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे हर एक पीस का हम लोग निकाल लेंगे और फिर सबको ऐड करते बैठेंगे. इसका मतलब ये होता है कि अबाउट सेंटर ऑफ मास along a axis perpendicular to the plane of the ring, moment of inertia निकालना easy है. करेक्ट. बट इफ आई वांट, मुझे about a tangent in its plane, I have a axis passing through point O which is perpendicular to the plane of the ring but it is about tangent. ये रिंग, अब मैं बॉडी को ऐसा रोटेट करवा रहा हूं. What is moment of inertia? To find out this, you have to use principal axis theorem, parallel axis theorem, sorry. दोनों को कंपेयर करके Basically, parallel axis theorem क्या बताता है आपको? This distance, let us say is h, वो r है basically इस केस में, but in general हम लोग h यूज करते हैं. तो moment of inertia about a point O, which is moment of inertia about an axis passing through point O, and this axis is parallel to the axis which is passing through center of mass. So I0 is equal to ICM plus mass of the ring into h square. भी रिंग है, हम लोग डिस्क भी ले सकते हैं, हम लोग स्पीयर भी ले सकते हैं, हम सिलेंडर भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर. The idea is this: about center of mass मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत सिंपल टास्क है. मतलब नॉर्मली वो पता ही होता है हमको. जैसे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन? mr². राइट. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ लगाते हो? जब एक एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दूसरे के अबाउट फाइंड करना है और दोनों एक्सिस पैरेलल है, तब लगाते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं हम लोग? When do you apply perpendicular axis theorem? जब परपेंडिकुलर हो. ठीक है. मतलब मेरे पास ये एक रिंग है, दिस इज मोमेंट ऑफ inertia through center of mass, it is about z axis. I want to find out what is moment of inertia about diameter, क्योंकि ये diameter हो गया. This is x axis and this is y axis. तो ये जो लाइंस है x axis और y axis starting from here to here and here to here, these are diameters of the ring. If I want to find out
moment of inertia about diameter. So we apply perpendicular axis theorem, which tells us that Iz is equal to Ix plus Iy, provided these three rotational axes are concurrent. They all pass through same point, and these three axes are mutually perpendicular to each other. तभी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते अप्लाई. बाय द वे, IZ क्या था? IZ था ICM, IX क्या था? ID, और IY क्या था? ID, क्योंकि IX और IY वो वैसे भी डायमीटर से. तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे ICM equal to 2 times of ID, right? तो ID will be ICM by 2. हाँ, तो हम आगे देखेंगे, बट I just wanted to introduce what is parallel and perpendicular axis theorem. याद रहेगा पक्का, क्योंकि आगे अभी अराउंड 15 से 20 ऑब्जेक्ट का अलग अलग ओरिएंटेशन में हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो मैं आपसे ही करवा के लेने वाला हूं, बिकॉज देन यू हैव टू राइट इन एग्जाम, नॉट मी. और ये इजी है, ये ओरली भी होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ moment of inertia of some standard bodies about different axes. Moment of inertia, mission impossible, of some standard bodies about different axes. I will take first. We will talk about body, which is, let us say, a ring in this case. Then axis of rotation. Axis of rotation is about center of mass or center of gravity and perpendicular to plane. So about CG, देखो रिंग के केस में या सिमेट्रिक बॉडी के केस में, स्पीयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एट द सेम पॉइंट. फॉर asymmetric bodies, center of mass and center of gravities may be at different points. So about center of gravity and perpendicular to the plane, right? So let's draw figure for your understanding. Then, because we are anyways doing this much, I would like to know few more things, which is radius of gyration, and I would like to know what is the ratio of k square by r square, because all this you need while solving numericals. This all parameters you will need, and if you want to make things simpler for yourself, you need to know different things here. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख देते हैं, and I will just move this. Right. So who will tell me what is moment of inertia of a ring? अभी बताया था कामाक्षी ने. You remember moment of inertia of a ring through its center of mass perpendicular to the plane. मतलब ये रिंग था जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, करेक्ट. तो अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होता है ऑलवेज. गुड. व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? के. व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? बताया था मैंने. This body is rotating.
right? You have a body which is rotating. Will it have moment of inertia? Yes, correct. सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है I1, लेट अस से I1, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट में डाल देता हूं, कीपिंग द रोटेशनल एक्सिस द सेम। अब मैं अलग अलग डिस्टेंस पे इस बॉडी को रोटेट करवा रहा हूं, मतलब सर्कुलर मोशन हो गया। अब तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, राइट। एट सम डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और पहले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, दे विल बिकम इक्वल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, right? That particular distance at which moment of inertia of extended mass is equal to moment of inertia of point mass, they are equal. That distance is called as radius of gyration. तो इस केस में k और r होता है इक्वल, मतलब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना आया? 1. Good. Then I will take a ring again. I want to have what is the moment of inertia about a tangential axis and perpendicular to the plane. मतलब I have a ring, I want to know what is the moment of inertia of this particular configuration और ICM पता है, ये डिस्टेंस पता है R, कैपिटल R, हाँ 2mr square, क्यों? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, I0 equal to ICM प्लस mh स्क्वायर। ICM तो आपको पता है mr स्क्वायर है, h की वैल्यू भी क्या है? r है, तो 2 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will become 2 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन का जनरल फॉर्मूला याद रख लिया ना आपने, I इक्वल टू m k स्क्वायर होता है, राइट? तो इसका मतलब मास अलग कर दो, वो छोड़ के क्या बचा? 2r स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो k कितना हुआ? राइट। अभी ये टेबल खत्म होते होते आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कम से कम, बिकॉज वी विल डू एवरीथिंग ओरली नाउ, राइट। क्या करोगे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन में से m को अलग कर दो, जो बचा हुआ टर्म है उसका स्क्वायर रूट ले लो, राइट। व्हाट विल बी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर? 2, सिंपल, राइट। डिफिकल्ट था क्या ये? Was it difficult? No. Then if it wasn't difficult, then we should go ahead and look for other things now. Other objects. Okay, so I am still talking about rings, but I am going to change orientations. I am going to, if I change the axis of rotation, everything changes, correct? Good. So let me take a ring and I want to know what is the moment of inertia about its diameter. मतलब this is the ring and I would like to know what is its moment of inertia about either this or this. So this is x-axis, this is y-axis, which are
along the diameters, and we already know what is moment of inertia about z-axis. What is moment of inertia? mr square by 2. क्यों? मैंने अभी बताया था iz इक्वल टू ix प्लस iy. iz क्या है? ICM. ix क्या है? id. और iy क्या है? id. तो ICM इक्वल टू id प्लस id, मतलब ICM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ id. id इज इक्वल टू ICM बाई 2. व्हाट इज ICM? mr स्क्वायर. तो ये आपका आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2. रेडियस ऑफ गायरेशन. बहुत टाइम लगा रहे हो आप. r by root 2. What is k square by r square? Correct? Good. Then about tangent in its plane. In its plane. So I have a ring. I want to rotate this ring about an axis which is tangent 3 by 2 mr square. How come 3 by 2 mr square? It's because you have this as diameter, correct? Then this is h equal to r. हमको id पता है, करेक्ट? हमको IO फाइंड करना है. तो IO बाय डेफिनेशन और बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, इट इज ID प्लस mr स्क्वायर. दो एक्सिस पैरेलल है, इसका पता है, इसका फाइंड करना है. क्या करोगे? IO इक्वल टू ID प्लस mh स्क्वायर. h इज ऑल्सो r, क्योंकि दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? r. बराबर ID क्या था? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर. कितना आ गया? 3 बाय 2. 1 प्लस हाफ इज 3 बाय 2. समझा कि वापस रिपीट करूं? पक्का? श्योर श्योर श्योर. तो 3 बाय 2 mr स्क्वायर. रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए फॉरगेट अबाउट m. सिर्फ m निकाल देना, जो बचा उसका स्क्वायर रूट लेना. तो अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 r, राइट? और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? अरे तो ये जो टर्म है ये के स्क्वायर ही है, क्योंकि आई क्या होता है इन जनरल एम के स्क्वायर. फिर आप कंपेयर करोगे इसको और इसको, मतलब एम और एम गया, मतलब के स्क्वायर क्या आया आपका? 3 बाई 2 आर स्क्वायर. तो के क्या आया? अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 आर. फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आया? 3 बाई 2. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करते हैं? क्लियर हुआ क्या? Please answer by yes or no. Yes, good. So it is 3 by 2. Simple. Then now we are bored with this particular object. हमको अब देखना है डिस्क का केस. And what I will do is I will just do something which is good because I am lazy. ये सारा करने में मुझे आएगा कंटाला, इसलिए आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. एंड मैं हर जगह पे अब सिर्फ रिंग हटा के मैं डिस्क लिख दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा इजी. अब ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है. इट इज अ डिस्क. व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about its center of gravity perpendicular to its plane? mr square by 2.
आर स्क्वायर बाई 2। ये डिराइव करके दिया है आपको स्टेट बोर्ड की थ्योरी में। एनीवेज, इट इज सिंपल टास्क। व्हाट विल बी k? r by root 2. What will be k square by r square? 1 by 2. Okay. What will be moment of inertia of a disk about tangent perpendicular to its plane? mr square by 2 is about center of mass. टेंजेंट जो है वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस को पैरेलल है, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस में? r, तो कितना हो गया? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना हो गया? 3 by 2, 3 by 2 mr square. What will be k? Right? And people say it is difficult. याद नहीं रहता, तो याद रखना ही नहीं है, याद कैसे रहेगा? इसको याद रखना ही नहीं होता. This is something that you don't have to remember. This is something which should come naturally. खुद का नाम कैसे याद रहता है, वैसे याद रहना चाहिए, तब जाके नीट एग्जाम क्रैक होगा. So let me get rid of all the unnecessary data over here. Okay, then what is moment of inertia about diameter of a disk? mr square by 4. क्यों? मैंने बता दिया था, क्या बताया था? id is ICM by 2. ICM क्या आया था इस केस में? What was ICM in this case? Look, mr square by 2 by 2, mr square by 4. समझा क्या आंसर? ओके, तो दिस mr square by 4. What is k? r by 2. What is k square by r square? 1 by 4. What is moment of inertia about tangent in its plane? इसमें सिर्फ आपको, क्योंकि ये पता है अभी आपको, ये mr स्क्वायर बाय 4 हो गया, उसमें आप सिर्फ mr स्क्वायर ऐड करोगे बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर कितना होता है? 5 by 4. 1 by 4 में 1 ऐड किया तो 5 by 4 mr स्क्वायर. मतलब ये आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 5 by 2 टाइम्स ऑफ r, और ये आएगा 5 by 4. Clear? Right? Good. Okay, तो अब let me take annular disk. Annular disk with inner radius r1 and outer radius r2. तो ऐसा हमारे पास एक एन्युलर डिस्क है, मतलब मास इज हियर, इनसाइड देयर इज नथिंग, द रेडियस हियर इज r1, the radius up to this point I'll draw with some other color, this is r2. What is moment of inertia of this annular disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane? Yes. Moment of inertia of R2 minus R. I want final answer. क्योंकि आपको एग्जाम में तो फाइनल आंसर लगने वाला है ना. You cannot write because this is not subjective, this is objective, so you cannot write.
what will be the answer to this? M by 2. Yes, r1 square plus r2 square, ये आता है ऐसा पूरा सॉल्व करने के बाद। क्यों? क्योंकि r2 जो रेडियस है, आउटर रेडियस जो है, अगर उसको मैं डिस्क मान लेता हूँ, डिस्क का कितना हो गया mr स्क्वायर बाई 2, तो mr2 स्क्वायर बाई 2 माइनस एक अंदर का डिस्क निकालना पड़ेगा हमको, अंदर उसको हॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एनुलर डिस्क, राइट। हाँ, तो फिर वो माइनस माइनस सब करने के बाद ये आता है। देन we will not talk about this and this here for the time being, न्यूमेरिकल्स में तो देखेंगे। so what will be about tangent in its plane, मतलब अब सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ओके, तो एक एक्स्ट्रा एक्सिस डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड नाउ वी आर रोटेटिंग दिस अबाउट द एक्सिस इन द ग्रीन। अब बताओ क्या आएगा, ये आपको पता है यहाँ का, यस कितना है m बाई 2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस प्लस r2 माइनस r1 स्क्वायर इंटू n, क्योंकि अंदर बीच में हॉलो है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सब सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा m बाई 2 3 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, करेक्ट, गुड। देन ऐसा हम लोग जैसे हम यहाँ करते आए हैं अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इसके लिए भी कर सकते हैं, विच विल बी लेफ्ट एज एन असाइनमेंट फॉर यू। व्हाट विल बी फॉर सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को नॉर्मली थोड़ी सी गलती से डिस्क ही मान के चल लेते हैं बहुत जगह पे, तो सिलेंडर का भी देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, गलती नहीं है, दैट इज करेक्ट। सो वी विल लुक एट दोज थिंग्स इन डिटेल्स नाउ। जो करना पड़ेगा हमको वो डिस्क का, डोंट वरी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस, क्योंकि इस मॉड्यूल में 2 ही चैप्टर है, ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। देन I'll get rid of this, I will about its diameter बोल दिया था मैंने, I'll get rid of this also, this also, I don't need anything here now, this also, okay। तो we'll play a game now, fastest finger first, solid cylinder, मुझे आंसर फास्ट चाहिए, solid cylinder about its own axis, about its own axis, own axis का मतलब होता है ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये एक्सिस है, ये खुद का उसका एक्सिस है, along the length is about its own axis, quick, नहीं मैंने पहले बता दिया, इसका रेडियस है r, मैंने पहले बता दिया था सॉलिड सिलेंडर इज नथिंग बट डिस्क, ऊपर से देखोगे डिस्क दिखेगा ना, mr स्क्वायर बाई 2, गुड। k इज इक्वल टू, दर्शन बहुत टाइम लगा रहे हो, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कामाक्षी 1/2, ओके।
तो सॉलिड सिलेंडर, अभी अबाउट इट्स ओन एक्सिस नहीं ले सकता मैं बोल लेता हूँ टेंजेंशियल, अबाउट इट्स टेंजेंट, मतलब अभी सिर्फ क्या है कि ये सिलेंडर है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हियर। ओके, बताओ फर्स्ट 3/2 mr square, because mr square by 2 plus mr square k under root 3/2 r 3 by 2 k square by r square, बराबर? नहीं बराबर, क्यों नहीं बराबर? अब ठीक है, गुड, राइट। So this is how you are supposed to find out. Okay, then few more cases and we are done. पूरा चैप्टर ही हो जाएगा फिर तो ये ऑलमोस्ट। सॉलिड सिलेंडर ही है हमारे पास अभी तक। देन we will just change orientation of rotation. So what we will do is we will take about an axis passing through center of gravity, about center of gravity and perpendicular to the length of cylinder। मतलब ऐसा सिलेंडर है और हम लोग उसको यहां से रोटेट करवा रहे हैं। लेंथ इज L, radius is R। Any clues? Anything here? What is radius? What is moment of inertia of a rod about its ml square by 12? 12 नहीं, L square by 12 plus R square by 4, ऐसा आता है वो। What will be radius of gyration? L square by 12 plus R square by 4 का root। Let us forget about this for the time being. Okay, then about tangent या फिर about diameter बोल सकते हो, about diameter of one of the faces, of one of the faces, मतलब this is cylinder, two faces, about this axis, or remember you already know this thing, you know what is this, okay? So tell me, this plus L by 2 का square, exactly ml L square by 12 plus L square by 2 या 4, L square by 4। What is L square by 12 plus L square by 4? L square by 3, मतलब only change you will have here is L square by 3 plus R square by 4, no other change, correct? Parallel axis theorem, तो ये भी easy है, L square by 3 plus R square by 4 whole raised to half, clear, right? बोर हो रहा है क्या? Her face says yes, so I'll skip few things क्योंकि जरूरी है ये। I mean, I told you that there are minimum 20 questions that you have solved already. Let's do it orally now. What about a solid sphere? About the center of that solid sphere? Yes, आकांक्षा, solid ball है
उसके सेंटर से एक एक्सिस जा रहा है. So what I mean is this. Pointer is where? Here. I mean to say you have a solid ball and the axis is passing through its center of mass. मतलब ये about center of mass भी है, ये about diameter भी है. What is this? Solid sphere. Solid sphere. 2 by 5 mr square. What is k value here? Root of 2 by 5 r. What is k square by r square here? 2 by 5. क्यों बता रहा हूं? जब ये बॉडीज को मैं आगे जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल करवाने वाला हूं, उस केस में रोलिंग मोशन में टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन, टोटल एनर्जी क्या होता है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, है ना. एक बॉडी को हम रोल करवाएंगे मतलब बॉडी रोटेट होगा और बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सिर्फ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अलोंग स्ट्रेट लाइन में जाएगा. वो आगे समझेगा आपको. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? आई ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज आई? एम के स्क्वायर. I is mk square. Mk square omega square. What is omega? V by R. mk square V square by R square. तो k square by R square आया काम वहां पे. तो तब ये सारा पता होना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चंस ओरली सॉल्व करने हैं तो थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझेगा आपको वेरी सून कि जब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तो मोर देन 50% वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. Let's take a hollow sphere. What is I center of mass or ID for a hollow sphere? 2 by 3 mr square. What is k? Under root of 2 by 3 r. What is k square by r square? Is 2 by 3. So your brain should work like this. Otherwise difficult है. अभी एक सिर्फ रॉड का रह गया, वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे रॉड. ओके, देन फटाफट हमको देखना है टॉर्क. So now we want to know what is the torque tau acting on a rotating body. देखो, मैंने जब काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, मैंने आपको बताया था बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट व्हाट? ओमेगा, राइट. Because if you compare with linear motion, then you have mv square, half mv square, v being constant. यहाँ पे है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बीइंग कांस्टेंट. मेरे पास एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब वी विल चेंज, बट देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज कांस्टेंट फोर्स वाज अप्लाइड. अब एक बॉडी रोटेट हो रहा है, मैंने एक रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगाते हैं हम? टॉर्क. और हमने एक कांस्टेंट टॉर्क दे दिया उसको. द बॉडी वाज ऑलरेडी रोटेटिंग, दो रोटेट हो रहा है, मैंने एक्स्ट्रा टॉर्क लगा दिया बट कांस्टेंट, राइट. तो दैट टॉर्क विल प्रोड्यूस कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जब आप टॉर्क की बात करते हो, यू से दैट द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट acceleration, no more constant velocity, constant acceleration. So can you tell me, if I have a body, of course made up of discrete particles, what is the formula for torque on this? आपने already बताया है मुझे. Force is m into a, torque is I into alpha. Good. Can you tell me what is the torque on this in vector form? For example, ये डोर है, मैंने इस डोर पे, इस पॉइंट पे
फोर्स अप्लाई किया है, मतलब ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन. द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर बार, ये हो गया एफ बार. व्हाट इज टॉर्क इन टर्म्स ऑफ आर एंड एफ इन वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में डॉट या फिर क्रॉस होता है, इनटू तो नहीं बोलते हम. आर बार क्रॉस एफ बार, ये पता होना जरूरी, मतलब आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज. करेक्ट? You need to know all these things. Then, okay, what is angular momentum of a rotating body? Angular momentum, L. What is L? ये भी होता है, ये भी आपने सीखा था, law of conservation of angular momentum. Similarly, you have learned law of conservation of linear momentum. What is L bar? अभी आपने बताया, I have said nothing. What is linear momentum? कौन बताएगा? mv. What will be angular momentum? I omega. Excellent. तो I omega, उसके लिए पहले मुझे चाहिए r बार क्रॉस p बार. ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम. स्केलर फॉर्म इज rp sin थीटा. बट डू यू रिमेम्बर, मैंने बताया कि जब भी एक बॉडी रोटेट हो रही है, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज अबाउट टेंजेंट. तो मान लो कि मैं ये एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया आपका p का डायरेक्शन, क्योंकि p इज mv बार. एग्री? मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. ये है आपका r बार. एग्री? What is angle between R and P? 90. What is sin 90? 1. तो इसलिए हम लिखते हैं इसको L equal to RP. What is P? MV. बराबर? क्लियर यहां तक? तो what is V in terms of omega? R omega. R M R omega. मतलब L equal to M R square omega. मतलब L equal to I omega. Correct? Any doubts? ये सब पता अगर है तो I can start with the last topic, theoretical topic of this chapter, because tomorrow we are going to do only numericals, and that too 90, 80, 90% of them orally, क्योंकि हमारा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है. So work, energy and power of a rolling body. We'll study this under a topic named as work, energy and power of a rolling body. Rolling motion, rolling body एक ही बात है. First thing first, let's talk about rotational and translational kinetic energy first, because you need to know exact form of this before you study what is rolling motion. Yes, ये क्या था? हाफ mv स्क्वायर. ये क्या था? हाफ I ओमेगा स्क्वायर. इसका दूसरा फॉर्म क्या था? यू रिमेम्बर? हाँ, लेकिन मैं अगर v स्क्वायर को v इंटू वी लिखता हूँ तो हाफ mv इंटू वी. व्हाट इज mv? मोमेंटम, है ना? हाफ pv. तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है. मैं लिख सकता हूँ हाफ, व्हाट वाज मोमेंटम हियर एंड देयर वाज एंगुलर. तो हाफ
एल ओमेगा, फिर आपने एक और बता ही दिया पी स्क्वायर बाय 2m, तो दिस इज also एल स्क्वायर बाय 2i। ये सब पता है तो you can find out power. What do you mean by power? What is the definition of power? W by T, work done per unit time, right? What is work? That is energy. मतलब rate of change of energy, okay? Rate of change of rotational energy in this case is power, because हम अभी फिलहाल रोटेशनल में है, इसलिए in the domain of rotational motion. तो take derivative of half I omega square, right? Then moment of inertia purely depends on m and r, मतलब how the mass of a body is distributed about its axis of rotation, and I is constant if the axis of rotation is constant. तो constant derivative के बाहर, what is derivative of omega square with respect to time? Anyone? Derivative of omega square with respect to time, I constant है ना हर एक बॉडी के लिए, बराबर ना? 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, तो 2 गया, तो P इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा, ये आ गया पावर। क्लियर? बट व्हाट इज आई अल्फा? टॉर्क, तो टो ओमेगा। आर यू गेटिंग विथ, आर यू गेटिंग मी और नो? यस और नॉट? गुड। You need to understand concepts clearly. फिर उन्होंने this is good. Slipping, rolling and spinning. This is what I was waiting for, क्योंकि सबसे important चीज मुझे ये लगता है। Good questions, interesting. So we will talk about slipping, rolling and spinning. So who will tell me what is the meaning of slipping, what is the meaning of rolling, and what is the meaning of spinning? Slipping, फ्रिक्शन नहीं होगा। रोलिंग, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। मैं समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, द बॉडी इज स्लिपिंग, मतलब स्किडिंग, मतलब देयर इज नो रोटेशन। तो रोटेशन होने के लिए फ्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? स्लिपिंग मीन्स नो फ्रिक्शन, that means only translation motion. Spinning means what? No translation, only rotation. The body is rotating at its own place, मतलब center of mass is not going anywhere, still it is just at that point. What is rolling then? Rotation, exactly, very good. So you, whatever you said, you can just put this in terms of equation, and that can be used later on for solving numericals. So when you talk about slipping, kinetic energy of translation will be what? Half mv square. Kinetic energy of rotation will be what? 0. When you talk about spinning, kinetic energy of translation will be what? Kinetic energy of rotation will be what? Half I
ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बहुत सारे फॉर्म है, कैसे? फिर आप बोलोगे हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये एक हो गया। हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये एक हो गया, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मेक फॉर्म्स। देन रोलिंग मोशन, translational kinetic energy is half mv square, rotational energy is half I omega square, total energy is kT plus kr, that is half mv square plus half I omega square, that is half mv square plus half mk square omega square, so that is equal to half m common v square प्लस, आई मीन आपके ऊपर है, एक स्टेप बढ़ा दो तो बढ़ा दो, वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड नाउ यू नो व्हाई आई वाज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है। What is total kinetic energy of a hollow sphere? Hollow sphere 2 by 3. 2 by 3 plus 1. 2 by 3 plus 1. 5 by 3. 5 by 3 into half mv square. 5 by 6 mv square. यही आंसर आएगा, राइट? तो इसलिए बार बार मैं वो टेबल इतना लंबा लेने का रीजन ये था। अगर मैंने पूछा फॉर अ हॉलो स्फीयर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ kinetic energy is its, or what fraction of total energy is kinetic energy for a hollow sphere when it is rolling? What fraction of total energy is its kinetic energy? आंसर फ्रैक्शन में चाहिए। टोटल एनर्जी कितना निकाला आपने? 5/6 mv square. What fraction of total energy is its translational kinetic energy? What is translational kinetic energy? Half mv square. फ्रैक्शन जब पूछते हो तो मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल। ट्रांसलेशनल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल कितना था? 5/6 एम वी स्क्वायर। तो हाफ अपॉन 5/6, हाफ अपॉन 5/6 सॉल्व करो। 3/5, व्हाट इज 3/5? 0.6, मतलब 60% ऑफ द एनर्जी इज 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 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर बचा हुआ 40 कितना हुआ? बचा हुआ 40 कौन सा हुआ? रोटेशनल हुआ। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये पूरा ऐसा टेबल के फॉर्म में, एक नंबर टेबल, 2 3 4, ऐसा 4 टेबल बना के दिया आपको। तो यू नीड टू बी क्विक इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। You need to be extremely quick. Okay. Just a minute, because I don't want to keep adding extra pages. Right? We'll stop here. Tomorrow we will learn all these three. Rolling of a body on a horizontal plane, rolling of a body on an inclined plane, and we will solve numericals. So we will stop here.